Ma'am. Okay. Good morning to all. Firstly, sorry for the net issues. I'm starting. It is not about what you achieve. It is about what you overcame. How great it would be if someone just stayed up for our hobbies. On the fourth day of Counseling Career Week, I welcome the very honored person, Mr. Gaurav Goyal, to DLDAV Modern School. He started his career in the government of India, but soon realized that his interests lied in other fields he was afraid to pursue, and we are glad he did. He worked for the Edcom Learning Hour Private Limited and then started working with Vidya Mandir classes. He now trains for the ultimatum IITG and we proudly say has given many engineers to the world. He is, I'm sorry. He is the person a collaboration a company definitely needs to progress forward. Managing people, being a leader are his prime skills, and we hopefully learn something from him. We wish that whatever his goals he mentioned, like getting a permanent opportunity in the United States, uh, King's College London, MA, he we wish that he accomplishes his goal. Without wasting another of your and mine precious second, I would like to invite him to take over the stage. Sir, it's all yours now. Thank you, ma'am. Thank you for the my introduction, and it becomes easier when someone else tell you tell about yourself. Now, I'm going to discuss about the career options in public sector and government of India, and specifically, I will be dealing in science and technology part. I have deliberately left over the NEET and engineering part, though I will be discussing about it uh, for few minutes. So thank you. Thanks to Miru ma'am and DLDAV School, Shalimar Bagh. So this is about me. I have been graduated from in electrical engineering from IIT Delhi. Then I did my post graduation from IIT Kanpur. Right now, I am at CL Knowledge. CL Knowledge is an institute who prepares and trains students for IIT JEE and NEET medical entrance examinations. I look after the chemistry part. And currently, I'm also enrolled at King's College London. I'm with their Defense and Security Department. I'm doing my masters in international affairs, and my specialization is espionage and surveillance. I have been privileged to associate with the Prime Minister office. I was a scientist over there in the intelligence wing, and you all know that what our external security agency does for this country, for the security of this country. I started my career as a missile scientist over there, then got deputed to various departments such as Aviation Research Center and other wings, which I cannot discuss on an online and social media platform that is totally classified. So I won't be putting up those details over here. Secondly, I have also worked with Vidyamdir classes for good 4 years, and this is only because after leaving the government, I thought that I will venture into an education setup, and I will be interacting with the students. Because during my stay with the government, I felt that I have been, uh, I was not living a civilian kind of life. So I was totally detached from the society. And starting with the students, the young, eager minds of this country would be quite helpful if I start from there. And yes, it was a very good journey with their classes. I learned a lot of things over there. They also learned a lot of things from me. I developed their modules. I developed helped them develop their content. And I was also associated with Super 30 Patna. When I was doing my post graduation at IIT Kanpur, I was teaching underprivileged students over there. So someone from this organization
uh, Mrs. Minakshi Sahi, she's the center manager of Super 30. She called me up one day and said that a student wants to interact with you, and I said, okay, if I can do, I can help them in their academics, or at least I can motivate them. It will be a good experience for me. And I went there for only two lectures, but they said that students want more of your time. So I interacted with them for almost a year. I taught chemistry over there, and I thought that in chemistry my interest lies. And after resigning from the government of India, I felt that I can join Vidyamrit classes to teach chemistry. But right now I'm not with Vidyamrit classes. I have my own venture with a friend, and we are based out of Ashok Vihar. We are teaching students, preparing students, or rather training students and motivating students for their engineering entrance examination, and of course the medical. Right. So in today's presentation, the schedule will be like, first I will be discussing a lot about the sectors and programs within the government of India. Now, what are the core sectors where you can think that after your graduation, or even your post-graduation, or even after your PhD, you can move into and work with the most privileged department of this country, the government of India. And after that, I will be telling you the pathways, how you can go to that place, how I went there, and how you can start over there. Things have changed. When I started, there were different pathways. Nowadays, the pathway has changed, and it has become more convenient for the students. And thirdly, there will be a question and answer session. But I am also requesting you, if you have any question in between of this presentation, you can straight away ask me. I don't mind interrupting people, because I want this discussion to be a very open-ended discussion. It would be like an open class for all of us, right? So what are the core sectors? And see, at the core sectors, I have written DST. Does anyone know about DST? What DST stands for here? Anyone? Any guesses? See, no answer is a wrong answer. Shall I then? DST stands for Department of Science and Technology. So DST takes care of all the development in science and technology which are occurring in our country, which are happening in our country. So I will be discussing about the 5 core sectors. First is the nuclear sector, and it's a nuclear technology is a dual use technology. I will be discussing about that. After that, I will be discussing about the defense manufacturing, which I started when I joined Government of India. Then third is the space programs, which are currently going on in our country. Fourth is the heavy industry, and fifth is the classified. So I joined defense manufacturing, then I moved to classified. So these are the very big names which this country has produced. Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Satish Dhawan, they are associated with space program. Baba Homi Jahangir, and he's called father of nuclear science in our country. Because of his contribution, we have been able to achieve a very good platform for the nuclear program of this country. And of course, Dr. APJ Abdul Kalam, motivational speaker, intellectual leader of this country. And of course, he was into defense manufacturing sector, and he started integrated missile development programming for our country. So moving forward, firstly, the nuclear program. So nuclear technology, let me first remind you, it's a dual use technology. We know that uranium is there, thorium is there, plutonium is there. These are radioactive materials. They have unstable nucleus. So after some time, it can last for a few seconds, it can last for a few minutes. These nucleus breaks down. And why they break down? Because of instability inside the nucleus. There is a force disbalance. Have you heard of this term, nuclear force? Anyone? Nuclear forces? What kind of forces which are there inside the nucleus? Anyone? Any guesses? I want this discussion to be a participatory discussion. And as I said before, question and answer ही नहीं, मुझे बीच में भी अगर आप कुछ बोलेंगे, I will be
answering to that. Yes, anyone, why nucleus is unstable? As I have said that there are imbalances inside the nucleus or nuclear forces. आप बता सकते हैं कौन कौन से forces nucleus के अंदर होंगे? Electrostatic repulsion between the protons, and they do not go out of the nucleus, or the nucleus does not explode because of the nuclear forces only. Suppose, beta, what's your name? Sunera, sir. Sunena. Sunena, if there is only electrostatic force of repulsion, like in between proton and proton, then other nucleus should also explode, like oxygen, fluorine, nitrogen. Then why only these uranium, thorium, plutonium, or transuranic elements? Why only here it is that nucleus is unstable? Why it could be so? Any guesses? Apart from, okay, let me answer. Apart from this electrostatic force, we have a force called nuclear force. Now, very little is known about this nuclear force, but we do know certain property of this force. Like, first of all, this force is independent of charge on a body. So if there are particles inside the nucleus, it doesn't matter whether they have charge, whether they have like charges, or whether they have opposite charges. It doesn't matter there, but there are nuclear forces, and these nuclear forces are holding these particles together, the subatomic particles, the particle inside the nucleus. Now, what happens when atomic number increases? The number of proton also increases, and we have seen that after atomic number 82, 82 is the atomic number of which element? Do you know? Do you know? Lead. Lead symbol क्या रहता है उसका? Pb. Lead जो है, lead के बाद जो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो है न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर बढ़ जाने से क्या रहता है कि प्रोटॉन्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो न्यूक्लियर फोर्स जो कि पार्टिकल के चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है, वो उस फोर्स को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है, और इस फोर्स को काउंटर बैलेंस ना करने की वजह से डेफिनेटली न्यूक्लियस इज गोइंग टू एक्सप्लोड और इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. सो and during this breakdown, what happens? Small particles gets released, and along with it there is energy, and that energy is called nuclear energy. So होगा क्या? Now मैं आता हूँ straight away अपनी बात पे, dual use technology. Now there is a very big concern about nuclear programs of not only India, of any other country. Now nuclear use technology का मतलब क्या है बेटा? कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, अगर हम लोगों ने उसके अंदर मटेरियल के अंदर यूरेनियम की, थोरियम की या प्लूटोनियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दी, तो क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस वहां पर हो सकती है, अगर हम लोगों ने जो है कंट्रोल रोड्स अगर वहां प्लेस नहीं करी तो. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन माइट टेक प्लेस, एंड वही सब काम हम लोग अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर भी करते हैं. तो सेम मटेरियल, जो सेम फैसिलिटी जो यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए है, वही फैसिलिटी यूरेनियम को फर्दर एनरिच करने के लिए थोरियम और प्लूटोनियम में यूज की जा सकती है, और उससे हम लोग न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हैं. सो डुअल यूज मींस सिविलियन यूज एंड नॉन सिविलियन यूज. इन सिविलियन यूज व्हाट वी डू इज, जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है हम उनका एनरिचमेंट नहीं करते, वहां पर हम कंट्रोल्ड रिएक्शंस करते हैं, और वो कंट्रोल्ड रिएक्शन से हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं. बट उसी फैसिलिटी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब न्यूक्लियर अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइक अगर हमने यूरेनियम यूज किया, वो ब्रेक डाउन होके हमें अनदर रेडियोएक्टिव मटेरियल दे देता है जिसको हम प्लूटोनियम बोलते हैं, और प्लूटोनियम जो है हम लोग जो है उसको भी एटॉमिक बॉम्ब और फर्दर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो अगर किसी फैसिलिटी में हम यूरेनियम के ब्रेक डाउन के दौरान अगर हम थोरियम या प्लूटोनियम को एनरिच कर रहे हैं, वहां पे डेवलप कर रहे हैं, एनर्जी तो ले ही रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, तो वो मटेरियल फर्दर हम फीड कर सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए या हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए, और वहां पर उन बॉम्ब को यूज करते हुए हमें अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस करनी होती है. सो न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो भी न्यूक्लियर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग पीसफुल पर्पस, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में, उस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम वेपन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. नाउ जो सिविलियन यूज है,
जो सिविलियन यूज है उसका, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम मोस्टली सिविलियन यूज के लिए ही डेवलप किया गया है, क्योंकि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री एंड हम लोग जहां पर भी जाते हैं वी से दैट वी शुड प्रमोट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग जो है वेरियस स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरियस कंट्रीज और स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिविलियन यूज में जो हमारी सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज कॉल्ड BARC, बार्क। इट इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, Baba Humbi Atomic Research Center. The father, Baba Humbi, Jahangir Humbi is the father of nuclear program of this country. So BARC जो है ये इसका जो है नोडल पॉइंट है। अगर आपको न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है तो बार्क में आपको पहले जो है अपने आप को जो है वहां पर जो है ज्वाइन करना होगा। वो मैं प्रोसेस आपको पाथवे डिस्कस करूंगा इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, एंड उसके बाद जो है आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ बार्क इज द नोडल एजेंसी जो सिविलियन यूज के लिए जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हमारे हैं वहां पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, R&D होता है। नाउ स्पेसिफिकली अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसका जो टेक केयर है वो कौन करता है? NPCIL। सी मैंने यहाँ पर एक फोटोग्राफ भी डाला है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दे हैव दीज इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहां पर हम यूरेनियम को यूज कर रहे हैं। यूरेनियम को हम एनरिच नहीं कर रहे। याद आया मैंने क्या बोला? अगर हम यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं तो हम शायद किसके लिए तैयार कर रहे हैं उसको? यूरेनियम को प्लूटोनियम में जब कन्वर्ट करके उसको एनरिच कर रहे हैं तो एटॉमिक बॉम्ब के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड एक कंसर्न होगा कि इंडिया जो है वेपन्स के लिए एनरिच कर रहा है यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट करके, वो एक कंसर्न रहता है। तो वी आर अ पीस लिविंग कंट्री, हम जो है सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करते हैं और हम लोग अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूरेनियम को केवल यूरेनियम को डिकम्पोज करवाते हैं, जो प्लूटोनियम प्रोड्यूस होता है उसको एनरिच नहीं करते। हम लोग वहां पर कंट्रोल्ड रिएक्शंस करते हैं और उससे जो है जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए उससे हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर बॉयल होकर स्टीम प्रोड्यूस करता है। स्टीम को हम हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, उसको टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन मूव करता है, दोनों तरफ मैग्नेट्स होती हैं। जब टरबाइन मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं और उससे EMF इंड्यूस होता है और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा जो काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इट इज टेकन केयर बाय NPCIL। एंड NPCIL को जो भी R&D करना होता है इट कम्स अंडर BARC, बाबा हुम्बी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नाउ नॉन सिविलियन यूज क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का? स्पेसिफिकली जो यूज है वो मिलिट्री पर्पस के लिए है एंड टू डेवलप अ वेपन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटीज हैं वहां पर यूरेनियम जब डिकम्पोज हो रहा है तो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो रहा है। उस प्लूटोनियम को हम रेगुलरली जो है एनरिच कर रहे हैं। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा, आई होप आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशन वगैरह में ग्रेविटेशन चैप्टर में अप्लाई। तो वहां पे क्या करते हैं बेटा कि जो प्लूटोनियम जो हैवी एलिमेंट है उसको हम जो है एक फैसिलिटी के अंदर रन करते हैं और वो सर्कुलर पाथ होता है। जब वो रन करते हैं एक सर्कुलर मोशन होता है और जितना जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उनका जो एटॉमिक मास होता है काफी ज्यादा होता है। तो एटॉमिक मास ज्यादा होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है और ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा तो सर्कल में जो उसको अलोंग द रेडियस जो आउटवर्ड पुश लगेगा वो भी हायर साइड पे लगेगा। तो एक ऐसी फैसिलिटी समझिए जिसमें एक जैसे सपोज करिए एक व्हील मूव कर रहा है और जब वो व्हील मूव कर रहा है तो उसकी व्हील की जो स्पोक्स है, तो हम लोगों ने सेंटर पे रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला, प्लूटोनियम डाला और प्लूटोनियम के साथ दूसरा भी मटेरियल है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन हम प्लूटोनियम को एनरिच करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सेंटर पे उस मटेरियल को प्लेस किया और जब वो व्हील रन करने लगा तो स्पोक्स के थ्रू जो हैवी मेटल था वो स्पोक्स के थ्रू पेरीफ्री पे आ गया। और पेरीफ्री पे कौन सा मटेरियल आएगा, जो हैवी होगा या जो लाइटर होगा? पहले कौन सा आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा मटेरियल पहले आएगा पेरीफ्री पे? व्हाट डू यू थिंक? हैवी। तो वो जो आइसोटोप्स है, हेवियर आइसोटोप्स जो है, जो कि अनस्टेबल आइसोटोप्स भी हैं, उनको हम जो है इस साइड पे सर्कल के इसकी पेरीफेरी पे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे प्लूटोनियम एनरिच हो जाता है और जब ये प्लूटोनियम की परसेंटेज टोटल मटेरियल में प्लूटोनियम की परसेंटेज 20% से एक्सीड कर जाती है तो उस दौरान ये मटेरियल रेडी हो जाता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। नाउ ये इस फैसिलिटी को हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। नाउ कोई भी कंट्री जो है
अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो है अपने यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, बिकॉज देर आर इंटरनेशनल गाइडलाइंस। अगर वो गाइडलाइंस अगर हम लोगों ने फुलफिल नहीं करी तो हम लोगों को न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं मिलेगा। सी, इंडिया में न्यूक्लियर मटेरियल की माइनिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिलता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल सबसे ज्यादा है यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम, वो सबसे ज्यादा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में एंड सेंट्रल एशिया में। नाउ इन कंट्रीज पे जो कंट्रोल है वो वर्ल्ड की बिग पावर्स, ग्रेट पावर्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चाइना, इन लोगों के पास ये कंट्रोल है। अगर हम सेंट्रीफ्यूज, नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज अपने यहाँ इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि वो लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लाइक इंडिया may be producing a more number of weapons to threaten its neighbor, especially Pakistan and China. And China भी उस elite group में है जो न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। So there is a regime, export control regime, जो इंडिया को काफी टाइम से न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है। But what has happened is over a period of time we have shown the world that we are using nuclear material or this technology only for the purpose of civilian use, and to the extent we are developing weapons only that we want to produce a deterrence, कि लोग हमें डराए ना, बस इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ वेपन्स को बनाना चाहते हैं ताकि हम लोग अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, सो वी कैन हैव अ डेटरेंस। लाइक हमें चाइना या पाकिस्तान या कोई दूसरा कंट्री, थर्ड कंट्री हमें थ्रेटन ना कर सके, दैट वी कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यू। सो टू क्रिएट दैट डेटरेंस वी हैव डेवलप्ड a small arsenal of nuclear weapons. So who take care of that? Firstly, DRDO जो है काफी सारी मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, आप लोग न्यूज में सुन ही रहे हैं। In last 2-3 months, it have tested more than 25 missiles, air to air, surface to air, and different platforms पे, even using the trucks, army trucks, we have been able to use them as a launch pad. एंड हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हम लोग यूज कर सकें। अगर मुझे टाइम मिला, मैं कभी दोबारा स्कूल में आया तो मैं पूरी सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हमारे पास है मैं कभी डिस्कस करूंगा। सो नॉन सिविलियन यूज के लिए द नोडल पॉइंट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई स्टार्टेड माई कैरियर विद DRDO एज अ मिसाइल साइंटिस्ट, एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री के लिए जो है नॉन सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए वॉर हेड्स डेवलप कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इवन ये चारों ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। So this is about the nuclear program. Now the defense manufacturing, apart from the nuclear warheads, we have other weapons as well. Like हमारे पास टैंक्स है, हमारे पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है। अभी जो है रिसेंटली हम लोगों ने फ्रांस से कुछ एयरक्राफ्ट बाय करे हैं। Now what we will be doing is we have taken their technology, but the point is later on India will have to be self-sufficient in its defense manufacturing. हम हमेशा ही फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते मैन्युफैक्चरिंग में। आप बताएंगे कि हम फॉरेनर्स पे हमेशा क्यों डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते मैन्युफैक्चरिंग में, सब स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में? कोई आइडिया क्यों हम फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते? कोई आइडिया बेटा? रिस्ट्रिक्शन होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी एंड सर वो भी अटैक कर सकते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स को होता है, सॉरी प्लॉट्स, सर वो भी अटैक कर सकते हैं हमें। बेटा कोई भी अगर कंट्री अगर आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसने उससे बेहतर ही कुछ डेवलप कर लिया होगा, तभी दे रहा है वो, आप हमें दे रहा है, इजंट इट? क्या वो ये नहीं सोच रहा कि लेट्स से इजराइल ने इंडिया को कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी दिया, तो क्या इजराइल ये नहीं सोचेगा कि इन केस कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हॉस्टिलिटीज दो कंट्री के बीच डेवलप हो जाती है, तो हमारी ही टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया आप पे अटैक कर सकता है वापस? इजंट इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है या नहीं? ऐसा सोच सकता है कोई स्टेट या नहीं, कोई कंट्री ऐसा सोच सकता है या नहीं? यस सर। हाँ, तो वो क्या करेगा, हमें द बेस्ट टेक्नोलॉजी देगा या थोड़ी ऑब्सोलीट जो उसके यहाँ आउटडेटेड होगी वो टेक्नोलॉजी देगा? ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी देगा ऑफ कोर्स। एंड वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, दिस इज द रीजन। और हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो हम लोगों को देते नहीं है, लाइक जो न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो मैंने पिछली बार बोला। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खुद करें।
और अगर हम खुद ना कर पाए तो जिस कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, एटलीस्ट उसके साथ को डेवलप करें, ज्वाइंट वेंचर करें, दैट इज कॉल्ड अ जेवी। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है डीआरडीओ। फर्स्ट इज डीआरडीओ एंड सेकंड इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो मैंने पहले बोला, एंड थर्ड हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ दिस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल? ब्रह्मोस, मैंने थर्ड यहाँ राइट साइड में शो किया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में सुना है आप लोगों ने? हु डेवलप्ड दिस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल? एनी आइडिया? Okay, I won't be wasting any time anymore. रशिया एंड इंडिया ने जो है, इट्स अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रशिया एंड इंडिया, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। तो अब क्या है कि हम लोग जब ये डेवलप कर रहे हैं, वी नो द टेक्नोलॉजी नो हाउ। सो हम लोग जो है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग किसी दूसरी थर्ड कंट्री को हम लोग जो है ये टेक्नोलॉजी है और ये वेपन और ये मिसाइल जो है एक्सपोर्ट करेंगे। So defense manufacturing is very important. India has to be self-sufficient, जिसको आत्मनिर्भर भारत कहा गया है। And thirdly, the space program. Now, space program में क्या है? Space program is taken care by ISRO, Indian Space Research Organization. Now, space program में हमारे पास दो तरह के programs हैं। First is related to satellite, जो हम अर्थ के चारों तरफ लेके जाते हैं, low Earth orbit area, LEO, HEO, these are the orbits। मैंने लेफ्ट पे जो है, बॉटम लेफ्ट पे एक स्क्रीन भी शेयर करी है। There are two kind of satellite system we are using near to Earth, geosynchronous satellite and remote sensing satellite। एंड जो एक अलग प्रोग्राम है स्पेस प्रोग्राम हमारा, वो डीप स्पेस प्रोग्राम है, जिसमें हमारा चंद्रयान आता है, हम मार्स पे जाने की कोशिश करते हैं। सो स्पेस प्रोग्राम दो तरह के हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू सैटेलाइट एंड सैटेलाइट विच आर वेरी नियर टू द अर्थ, एंड सेकंड काइंड ऑफ मिशंस वी हैव, जिसमें हम डीप स्पेस में जा रहे हैं, हम लोग मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ जियोसिंक्रोनस और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो सभी को समझ आते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ यूटिलिटी लाइक वेदर फोरकास्टिंग, क्रॉप एंड कल्टीवेशन, क्लाइमेट चेंजेस, इन सब चीजों के लिए, ह्यूमन मूवमेंट, टेररिस्ट मूवमेंट्स, माओइस्ट मूवमेंट्स, कहाँ से हमारे नेविगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। हम लोग जो है डेटा ट्रांसफर के लिए सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं, जियोसिंक्रोनस एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इनका यूसेज तो मुझे समझ आता है, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग डीप स्पेस में क्यों जाना चाहते हैं, हम लोग क्यों मून पे जाना चाहते हैं, हम लोग क्यों मार्स पे जाना चाहते हैं। द ओनली रीजन इज वी नीड मिनरल्स फ्रॉम दीज प्लेसेस। लाइक हमारा मून पे जाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग मून से हीलियम 5 लेकर आना चाहते हैं। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं हीलियम इज अ स्टेबल एटम, बट नॉट ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हीलियम आर स्टेबल। देयर इज एन आइसोटोप कॉल्ड हीलियम 5, और हीलियम 5 एक अनस्टेबल आइसोटोप है। तो हीलियम 5 कैन बी यूज इन अवर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एंड जो कंट्रीज हमें डिनाई कर रही हैं न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूल को देने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दे हैव दिस कंसर्न दैट इंडिया विल बी यूजिंग that material for the development of atomic weapons, atomic bombs। तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, हम लोग मून से हीलियम लेकर आ सकते हैं। सो डीप स्पेस जाने का बस यही है कि इन अदर प्लैनेट्स if there are resources, especially the mineral resources, we can use for the benefit of our country and for the development of this country। So ये हमारा कंसर्न है। अदरवाइज इंडियंस का एज ऑफ नाउ टेरेस्ट्रियल या एलियन से मिलने का कोई इरादा नहीं है। We are not exploring on this part. Maybe NASA may be doing it. NASA is doing it. Other agencies of the world, Western European world is doing it. France is doing it. But हमारा अभी कंसर्न हमारे डेवलपमेंट के लिए है, हम लोग मिनरल्स चाहते हैं डीप स्पेस में जाकर। नाउ ISRO इज द नोडल बॉडी। अगर आपको जो है स्पेस साइंटिस्ट बनना है, these are the centers of ISRO based in our country। लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ सेंटर्स जो है मैंने हटा दिए हैं, because that information is classified, cannot be shared on platform like this। So ISRO में जाने के लिए कैसे होगा, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। Now the heavy industry, इन लोगों के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं। Now what does it mean? Heavy industry का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ पे heavy क्या है? What does it mean? क्या connotations है heavy industry? Big projects। And there is a good called beta capital goods। Sorry, Energy fuels, maybe.
Okay. Sir, industries which are not meant for civilian use, like steel industry and Firstly, you have to understand what are capital goods. See, what one is consumer good. दाल, आटा, चावल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी जो है कंज्यूमर गुड्स है. लाइक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, ये भी कंज्यूमर गुड्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है. लेकिन क्या हम स्टील को डायरेक्टली यूज करते हैं या स्टील को ब्रिजेस बनाने के लिए यूज करते हैं या मेट्रो बनाने के लिए यूज करते हैं? क्या हमारा डायरेक्टली स्टील का इतना यूज है? लीव दैट स्टफ, यूटेंसिल्स, बट स्टील की जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या हमारा डायरेक्ट यूज है उनका, या हम ब्रिजेस बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, प्लांट्स बनाने के लिए यूज करते हैं? क्या लगता है, क्या हम डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं ये गुड्स, या हम अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुड्स से डेवलप करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. तो जो भी इंडस्ट्री जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की नीड्स को केटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री. सो जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ सबसे ज्यादा भेल का आता है इलेक्ट्रिकल में, गेल का आता है. गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स. भेल इज इन इलेक्ट्रिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर ग्रिड जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखता है पावर का. देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे ब्रिजेस रोड्स डेवलप कर रहा है. नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोडक्शन में जो है जो उसका कोर है. कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, and there are many more. Because of the limitation of the time period मैंने यहाँ put नहीं किया, but these are the big PSUs which work in heavy industry, which are there in heavy industry. Now the classified thing. So the first organization which I'm going to discuss about here is, which I worked for, is NTRO. It stands for National Technical Research Organization. Now it falls under Prime Minister office, and the people in this organization, they report directly to National Security Advisor. Do you know who is the National Security Advisor at this point of time in our country? Ajit Doval. Sorry? Ajit Doval. Mr. Ajit Doval. Yes, Mr. Ajit Doval. So the people of this organization, they report directly to NSA, and NSA is part of Cabinet Committee on Security, which looks after internal and external security of this country. So National Technical Research Organization has a number of departments in it, like missile monitoring systems, then computer emergency response team, then it has nuclear related stuff, nuclear forces related stuff. So all the thing which is classified, which is not in the public domain, but which is technical, is taken care by this organization, NTR. So I'm कोड से रिलेटेड जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है वो भी यहाँ पर करते हैं. FTT protocols are there, certain things are there which I'm not going to discuss in very detail because there is a security concern, but all the spying which is done in this country and which is related to the technical stuff, which involves technology, technical human resources, is taken care by this center. Like earlier we had in RAW, Aviation Research Center, which is called ARC. So ARC is Aviation Research Center, which were doing surveillance over in and around the border areas. So ARC got subsumed, was included a few years back in NTRO. So in 2014, from the side of Pakistan, in the Arabian Sea, there was a boat which was heavily armed and was heading towards the capital, financial capital of this country, Mumbai. So it was interrupted by this organization, and the people, the arms were neutralized there, and it's there and there itself in the Arabian Sea. So all the spying related to technical stuff is done by this organization. And secondly, we have NCA. On the right side, I have shown you a nuclear missile. I haven't given much details over here because I have told you the reasons. So an NCA, National Nuclear Command Authority, it's a nuclear force. See, we have developed quite a good number of nuclear arsenal. We have weapons, we have atomic bombs, we have missiles, we have small missiles and other stuff related to nuclear. So NCA is the force which takes care of our all the nuclear weapons. So it's a force.
it can also be joined by nuclear scientists if one able to get over there. So these are the sectors which I have discussed over here. Now, how to get into these sectors? Now, firstly, आप लोग क्लास 11th में सभी लोग साइंस स्ट्रीम के ही लोग हैं. Now, it doesn't depend के आप मैटर के आप लोगों ने PCM, PCB या PCMB किया है. You all can be part of these organizations, but there are certain advantages for PCM students, other for PCB students. Like firstly, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने रूट यहाँ दिखाया है आपके यहाँ. Either you go for BSc plus MSc. See, BSc will not suffice. BSc plus MSc आपको दोनों करना पड़ेगा. Then you will have to appear for an exam called GATE exam, Graduate Aptitude Test in Engineering. शुरुआत में ये एग्जाम बेटा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता था, बट बीएससी प्लस एमएससी लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं. अगर आपने बायोलॉजी में भी कुछ किया है, केमिस्ट्री में भी कुछ किया है, सो यू हैव टू अपीयर फॉर दिस गेट एग्जाम. तो गेट में बहुत सारे तरह के एग्जाम्स हैं. लाइक उसमें केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें फिजिक्स का पेपर है, उन्होंने डिवाइड कर दिया है. जो मेरी नॉलेज है, मोर देन गेट एग्जाम के थ्रू, जिस दिन गेट का एग्जाम होता है वहां पर जो है 20 एग्जाम्स के करीब, मोर देन 20 एग्जाम्स होते हैं. तो जो लोग इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं वो भी गेट के एग्जाम, लाइक किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा तो वो गेट में डबल का उसका एक एग्जाम कोड होगा, वो एग्जाम कोड शुरुआत में फिलअप कर देगा और वो एग्जाम के लिए अपीयर हो जाएगा. तो आप इंजीनियरिंग करें या बीएससी प्लस एमएससी करें, आप अगर गेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद दीज पीएसयूज जो हैवी इंडस्ट्री के मैंने बताए, जो मैंने बार्क, एनपीसीआई, डीआरडीओ, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, दे विल बी टेकिंग योर गेट स्कोर. और गेट के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. नाउ लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, टू बी इन दीज ऑर्गेनाइजेशन यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, you have to be a patient person. You have to be a patient person because results will come very long in your life. But after entering these organizations, you will find that you have earned your livelihood and you are at a privileged place. So you will be enjoying a lot of facilities over there. But in life, results will not come very soon. As I said before, to be a scientist, you don't have to be a genius. You have to be consistent in your approach. You have to have fundamental and conceptual clarity that is of utmost importance. This is the main source of your motivation, that you don't have to be a genius. You have to be very focused, and you have to, I would disagree that you have to be disciplined. I would rather say you have to be very sincere. So when things will turn your way, you will never know. You have to apply yourself over there. तो एकदम पैसा नहीं आ जाएगा जो लोग हम लोग यंग जनरेशन सोचते हैं. थोड़े थोड़े स्मॉल पार्ट्स में आप राइज करेंगे, बट यस डाउन द लाइन यू कैन बी अ गुड साइंटिस्ट और गुड रिसर्चर. सो पाथवे क्या है? बीएससी प्लस एमएससी और यू डू इंजीनियरिंग. आफ्टर ग्रेजुएटिंग after graduating you will have to appear for this gate examination. उसके बाद गेट का स्कोर आएगा. These PSUs and जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल कॉल यू. आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन. उसके बाद ये लोग आपको इंटरव्यू करेंगे एंड इंटरव्यू में आपकी थोरो नॉलेज चेक की जाएगी. एंड उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे साइंटिस्ट या रिसर्च इंजीनियर्स की तरह काम कर सकते हैं. देयर इज एन अनदर वे. बीएससी एमएससी या इंजीनियरिंग करने के बाद यू अपीयर फॉर सीडीएस एग्जाम. This exam is CDS stands for Combined Defense Services. So आप आर्म फोर्सेस में इंक्लूड हो जाएंगे. एंड मैंने लास्ट में दिखाया है NTRO, NCV, CERT, CMMS. ये जो मैंने लास्ट में ब्लू में हाईलाइट किया है, these are the classified services. तो PSU से इन लोगों को डायरेक्टली डेपुटेशन पे बुलाया जाता है. डेपुटेशन मींस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो होता है. आप लोग CDS के पाथ को फॉलो करके आर्म फोर्सेस के साथ काम करके भी इस क्लासिफाइड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं. नाउ देयर इज अनदर पाथवे जो आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनडीए के एग्जाम के लिए अपीयर हो, वो आर्म फोर्सेस में जाएं और आर्म फोर्सेस के बाद फिर इस क्लासिफाइड सर्विसेज में आए. तो ये दो चीजें हैं, या तो आप बार्क के लिए बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनिए, डीआरडीओ के लिए काम करिए, या फिर आप बिल्कुल क्लासिफाइड सर्विसेज में जाइए. तो अगर आप बार्क, एनपीसीआई वगैरह यहाँ पर चले जाते हैं तो फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन रहेगा that you have spent quite a substantial time over there
तो आप इन क्लासिफाइड सर्विसेज में जा सकते हैं, या फिर आप एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो दिस इज द कैरियर पाथवे। अगर आप लोगों को कुछ और डिस्कशन इस पे करना है तो मैं आपको और डिटेल्स दे सकता हूँ। सो आई कैन बी contacted on these two emails, and I am also available at CL Knowledge, Ashok Vihar। हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं, सीबीएसई स्टूडेंट्स को भी ग्रूम कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हैं हम लोग। See, I have taught at Vidyamandar classes, and I have seen, observed of there कि जब बैच साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो जो लोग को क्यूरोसिटी बहुत होती है सीखने की, वो कंपटीशन वाले माहौल में, उस माहौल में या इतने सारे लोगों के बीच अपनी बातें डिस्कस नहीं कर पाते। सो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें अपनी प्रिपरेशन के लिए, या अभी भी आपने कर रखा है और आगे भी आपको कोई अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मेक श्योर यू इंटरेक्ट विद योर टीचर्स अलॉट। आपके डाउट क्लैरिटी हो, डाउट्स में ना रहें आपके, राइट। और आप लगातार टीचर से टच में रहें ताकि आपका मोटिवेशन भी बना रहे, right? So now we can take questions from your side if you have any. गुड आफ्टरनून Good afternoon. सर। वो मतलब एक बार न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे थे ना, कि मतलब कि ऑक्सीजन एक स्टेबल है, और जैसे छोटे मोटे नाइट्रोजन वगैरह अगर ये स्टेबल है तो यूरेनियम वगैरह क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्योंकि प्रोटॉन के नंबर कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है। यस आफ्टर एटॉमिक नंबर 82 प्रोटॉन्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होने के बाद जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि चार्ज डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि मैंने बताया था, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते, उसकी वजह से न्यूक्लियस एक्सप्लोड करेगा। लेकिन सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स होता है, वो जो रिपल्जन होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उससे 100 टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो ये भी चीज पढ़नी हुई ना। राइट। अच्छा, आप ये बात समझिए, ये डिस्कशन क्या है, वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप पे है, k q1 q2 by r², राइट, उसी से रिलेटेड होगा। यस। हाँ, अब r कितना होगा रफली, आप बता सकते हैं? कुछ आइडिया है न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है रफली? सर 10⁻⁻15 मीटर्स होते हैं। यस। तो आप सोचिए उस इक्वेशन में 10⁻⁻15 का स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स भी बहुत स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा। यस सर। और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फिर कैसा फोर्स चाहिए? स्ट्रांग फोर्स चाहिए या वीक फोर्स चाहिए? सर स्ट्रांग चाहिए। तभी कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स, इजंट इट? यस सर। तो हम जो कूलम फोर्स नॉर्मली देखते हैं, जो हम लोग चार्जेस वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर लेवल पे नहीं सोचते, तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि वो 100 टाइम्स है। बट सोचिए इतने स्मॉल स्केल पे, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे पार्टिकल्स के बीच जब वो फोर्स होगा तो बहुत स्ट्रांग फोर्स होगा, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी बहुत स्ट्रांग फोर्स है। ओके सर, थैंक यू सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I have a question. In NDA, will we get any degree like BTech or BSc, or directly after training to Army and then the No. NTR? When you will get into NDA, they will be teaching you. There will be a degree program of 3 years. You will be getting your BSc over there. And after that, you will be joining the armed forces. You want to get into this spine thing, classified thing, is it? Yes, sir. So when you see, I have shown this pathway over there. Let me show you. Yeah. So after getting into NDA, you will be moving into armed forces. And armed forces में there are some units जो मैंने यहाँ mention नहीं करी है because of a reason. Technical intelligence units. They are into spine, and they closely work with this organization, NTRO, NCV, CERT, and CMS. Okay, sir. Sir, how to get into ISRO? ISRO, okay. First appear for this gate examination, and they will be taking your gate score. आप उससे जा सकते हैं. Another way could be इंजीनियरिंग के बाद IIT के स्कोर को देखकर भी जो है वहां पर ISRO में एक प्रोग्राम है. What is the name of that program?
जेई आप IIT जेई को क्वालिफाई करके भी इसरो में डायरेक्टली बीटेक के लिए जा सकते हैं. बट इन केस अगर आप वहां डायरेक्टली नहीं जा पाए, यू डू योर इंजीनियरिंग गेट, देन आफ्टर दैट यू कैन गेट इनटू इसरो. Sir, what is pathway for an IES officer? Okay. After doing your engineering, you will have to fill a form at UPSC, Union Public Service Commission. See, beta, all of these are Group A services, Gazetted Officer, Group A services. Earlier, all the Gazetted officers were recruited by Union Public Service Commission. But UPSC being an administrative body, they felt that they are inadequate to judge candidates for those streams which involves a lot of technology and science and technology. So they have separated this wing. Now अभी scientists के लिए पहले जो होता था 1970s तक, even 80s तक भी even scientist लोगों का इंटरव्यू भी UPSC में होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं. So for Indian Engineering Services, after completing your engineering, UPSC ही एग्जाम कंडक्ट करता है. एवरी ईयर इट कंडक्ट्स दिस एग्जाम. उसका एक पूरा कैलेंडर रहता है, आप UPSC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. एंड वहां पर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करिए. UPSC वाले लोग वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, वही लोग इंटरव्यू लेंगे. एंड आफ्टर once you qualify that exam, they will be recommending you to the president of India. तो आपको फिर कोई डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा. वो हैवी इंडस्ट्री से ही रहेगा, हैवी इंडस्ट्री लाइक रेलवे से रहेगा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रह सकता है. और एक चीज मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है डिजिटल के बारे में. सी, गवर्नमेंट जो है डिजिटल वर्ल्ड में कुछ खास काम करता नहीं है. वो बस केवल पॉलिसीज बनाते हैं. सारा डिजिटल का, कंप्यूटर रिलेटेड जो सारा काम होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, वही देखता है. उन्हीं के पास जो है वेयर विद ऑल है. गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है. गवर्नमेंट बस पॉलिसीज बनाता है. गवर्नमेंट की का विजन होता है कि ये प्लान है हमारा, ये करके देना है. तो डिजिटल इसी वजह से मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया. एनी अदर क्वेश्चन? सर IAS का एग्जाम जो है वो मतलब सिविल इंजीनियर वाले बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आप कह रहे हो डिजिटल मीडिया नहीं है गवर्नमेंट में. हाँ, गवर्नमेंट में नहीं है. इवन मैं आपको बताऊं, IAS के लिए बेटा जब एग्जाम देते हैं, और उसको IAS नहीं बोलते, सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं, उसमें काफी सारी सर्विसेज आती है. IAS तो उसमें एक कैडर है, एक टाइप ऑफ सर्विस है. IAS, IPS, दीज आर अदर फॉरेन सर्विसेज. तो वहां पर जो है कंप्यूटर साइंस का एग्जाम ही नहीं है. लाइक देयर आर अराउंड 23 to 24 पेपर्स. केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड ऐसे ही सब्जेक्ट. और वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं. यस, IT एंड कंप्यूटर साइंस नहीं है. तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोई दूसरा एग्जाम, ह्यूमैनिटीज का कोई एग्जाम से प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उसको लर्न करते हैं सब्जेक्ट को, उसको उसमें कंफर्टेबल होते हैं और फिर अपीयर होते हैं. तो आपका क्वेश्चन क्या था? रिपीट योर क्वेश्चन अगेन. सर मैं IES बोल रहा था. IES आप कह रहे थे ना कि सर डिजिटल वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो जो सिविल बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज में फिर नहीं, IT एंड कंप्यूटर साइंस से आप नहीं जा सकते. वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन कंप्यूटर्स वाले में नहीं है. राइट. Good afternoon, sir. Sir, I have a question. Sir, since girls are not allowed in NDA, so doesn't that limit our options and sir competition? Yes, I understand. But there is short selection commission right now for girls. I mean, there is a lot of discussion about this, that why girls are not allowed. Someone says that they are physically not strong, which is a complete farce. And nowadays, warfare involves a lot of technical things like drones, like missiles. People are not going to going for combat operations on the border. So this is a cause that this is a patriarchy which girls are facing, that girls are not physically strong, so they shouldn't be allowed. So there is a lot of discussion, and I hope within 2-3 years you will be listening from our government, especially from our apex court, the Supreme Court, that no, this limit has to be lifted. This limit has to be lifted, and I'm very sure that
you people will be joining army very soon. So there are certain things, there are certain announcements that women can be trained for combat aircraft. Yes, these news are coming, but full-fledged it is not been there. But don't worry, not just after your 12th, but maybe after your graduation, you will be able to appear in CDS. You will be able to appear for this combined defense services examination. I'm very hopeful on that. Me too, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have a question. Apart from ISRO, what are the other opportunities for internships in India? In space? Yes, sir. No, but we don't have much opportunities. We don't have. Only thing you can do is you can join a PhD program, and what happens? ISRO doesn't do all the things at their centers. They do programs with the universities, like with the IITs, with the Indian Institute of Science. So, like for this, for example, for this Chandrayaan 2, to develop their controller, they collaborated with IIT Kanpur. So what you can do is you can enroll yourself at IIT Kanpur or IITs or some other reputed research institute in their mechanical or aeronautical program, and there you can do work for ISRO there, because ISRO, as I said before, ISRO is not doing each and everything of its own. It is in association with various institutes. It is doing a lot of other projects. So you can only join those programs. Apart from that, we do not have any other thing. Okay, sir. Thank you. So what is the basic difference between BSc and BTech? Main difference, okay. In BSc, you will be studying about the fundamental sciences, like physics, chemistry, mathematics, or biology. The things you are studying in your class 11th and 12th. So, and in engineering, the application part will come using the principle of these fundamental sciences, how you can find solution, like IT technology. So first you have to learn the code. In computer science, you're learning the code. After in your BTech in computer science or in IT, you will be using those codes to find various kinds of solutions for your client. So BSc MSc is more research oriented or fundamental oriented. These are called fundamental sciences. Engineering BTech is related to the application part. Okay, sir. Thank you. Sir, what is basic difference in ethical hacking and cybersecurity? I would say that ethical hacking is a subset of cybersecurity. So yesterday evening, someone approached me for ethical hacking, and it's part of cybersecurity. Certain things which we cannot do directly, right? Because there are restrictions, there are laws, but there are some contingencies. There are very issues which are of concern, which are related to security. One becomes or takes takes help of an ethical hacker. So I would say ethical hacker is a subset of cybersecurity. Ethical hacking is a subset of cybersecurity. Right. So 1 minute. Lastly, just to promote myself and my institute, I would like you to see this complete brochure, and I have written certain points over here that don't be fooled by the big brands of coaching industry. I'm not saying that it is not they are not for all of you, but yes, for most of you, because what they do is, what is done over there is, they only show results which
which those people, they only display those photographs which have achieved top ranks, and their selection percentage is very low. So सपोज एक सेंटर से कुछ रिजल्ट्स आए, किसी दूसरे सेंटर से कुछ रिजल्ट्स आए, उन्हीं को सभी को कंबाइन करके वो ओवरऑल बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा देते हैं. एंड अगर आप कहीं जाके पूछेंगे कि आपके पर्टिकुलर सेंटर पे कितने रिजल्ट्स आए, तो उनके पास कुछ ज्यादा आंसर नहीं होंगे. वो एक कंपाइल्ड लिस्ट दिखाएंगे, क्योंकि 50-60 सेंटर्स रहते हैं. 50-60 सेंटर पे अराउंड 15 to 20,000 स्टूडेंट्स होते हैं. उसमें अगर हम 1% भी करें तो 200 हो जाता है. वो 200 एक साथ दिखाया जाता है, तो लगता है कि एक सेंटर से 200 रिजल्ट्स आए. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी. एंड वहां पर कुछ टॉप बैचेस रहते हैं. वो टॉप बैचेस में सबसे अच्छी फैकल्टी दी जाती है. जो दूसरे बैचेस हैं वहाँ पे जो ट्रेनीज होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको लगाया जाता है. और जो टॉप बैचेस हैं वहाँ पर जो है रिजल्ट्स लाने होते हैं, तो इसे और वही मार्केटिंग का काम करते हैं. सो दिस इज देयर स्ट्रेटेजी. एंड राइट, दिस इज about us. CL Knowledge, we are based at Deep Market, Ashok Vihar, and हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर है if you want to approach us. और इस PPT से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, I will be happy to share it with you. मैंने अपना ईमेल आईडी वहां दिया था. Shall I dictate it? और आप लोगों ने देखा है वो? तो देख लिया. Okay, right. So I will request the coordinator to wind up this meeting. Yes, sir. Yes, sir. Firstly, thank you. It was a really informative session. Many terms became more clear. New terms we learned, and definitely we would love to chat more with you. And it was a really successful session as well. Thank you. Thank you. On a bias way, it was the best so far. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much from the entire DAB facility.